So again, good afternoon everyone. So let's start. Today we will discuss a very important chapter, triangle. Triangle. Sir, triangles is very simple. A figure is bounded three side is called triangle. ये टॉपिक्स आपने छोटी क्लास में पढ़ा. सर, ए फिगर अगर तीन साइड से बाउंडेड है तो उसको ट्रायंगल्स बोलते हैं. बट इन योर 8th 9th स्टैंडर्ड वी विल डिस्कस congruency of triangles. So sir, what to congruency? Congruency means equals. This is my right hand, this is my left hand. These are equals. Yes or no? These are equal. Yes or no? No. Right hand and left hand are not equal. Why to equal? कैसे equal है? Is not equal. It are similar. Is very important. Congruency and similarity. Similarity you learnt in 10th class, but congruency you learnt in you shall learnt in 9th class. So is not congruence, is similar. And again think, this is my shirt button, this button and this button similar and congruence. This button and this button similar and congruence. Tell me. Similar. No, congruence. These are equal ना. लेंथ, ब्रीथ और जो होल्स है सब इक्वल्स हैं. बट हैंड में देखो, आप इसको इसके ऊपर रखोगे, चलो ये बटन को इस बटन के ऊपर रखोगे तो दीज आर फुल्ली कंपेयर. देखो ये पूरा का पूरा एक इसको ढक लेगा ना. आप जैसे अपने बटन को रखोगे तो पूरा का पूरा ढक लेगा. दीज आर बिल्कुल इक्वल. ऑल ऑफ थिंग इक्वल्स. होल्स इक्वल्स, इज दैट डायमीटर इक्वल्स, रेडियस इक्वल्स. बट हैंड्स, दिस इज हैंड, दिस इज माई राइट हैंड, दिस इज माई लेफ्ट हैंड. दीज आर नॉट इक्वल्स. माई थंब इज in this hand, right side is left side, and is my thumb left side is that right side. Sir, is equals. देखो अंगुलियाँ इधर हैं, इसकी अंगुलियाँ इधर हैं, इसका थंब इधर है, इसका थंब इधर है, तो ये इक्वल नहीं, ये सिमिलर है. सर ऐसे मिला है तो ढक लिया ना. देखो अगर हमने ऐसे मिला है तो ढक लिया, बट आप ऐसे मिलाओ तो ये नहीं ढकेगा. अगर आप इसको उठा के ऐसे रखोगे तो नहीं ढकेगा ना. तो दीज आर सिमिलर एंड दीज आर कॉन्ग्रुएंस. तो सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी में आपको डिफरेंस आना चाहिए. इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एंड नेक्स्ट ट्रायंगल्स. तो ट्रायंगल्स सर सिमिलर भी होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी भी होते हैं. सिमिलरिटी हम पढ़ेंगे 10th क्लास में, कॉन्ग्रुएंसी हम पढ़ेंगे 9th क्लास में. कॉन्ग्रुएंसी आर 4 टाइप्स. किसको पता है कॉन्ग्रुएंसी 4 टाइप की कौन कौन सी होती है? कोई बता सकता है? सर दीज आर कॉन्ग्रुएंसी टाइप. कॉन्ग्रुएंसी 4 प्रकार की होती है, पता है ना आप लोगों को? मैं फैन बंद करता हूँ, रुको 1 मिनट. आप कॉन्ग्रुएंसी ढूंढो कितने टाइप की होती है. Congruency is the 4 types. First type, side congruency. Sir, what to side congruency mean both are sides equal. Means 3 sides are equal. Next congruency, side angle side. Sir, side angle side means हाँ sir, side angle side mean 2 sides and between one angles are equal. 2 sides and between one angles are equal. These are 2 type congruency. And 3 type congruency is that एंगल साइड एंगल. एंगल साइड एंगल्स मींस नहीं एंगल इज नॉट कॉन्ग्रुएंसी. एंगल इज दैट सिमिलरिटी. एंगल साइड एंगल मींस 2 एंगल्स एंड बिटवीन साइड्स आर इक्वल. इज द 3 टाइप्स कॉन्ग्रुएंसी. एंड 4 टाइप्स कॉन्ग्रुएंसी इज RHS. RHS मींस this congruency apply only right angle triangle. Sir, what to right angle triangle? Right angle triangles have one right angles and front side is the hypotenuse and 2 sides, other 2 sides. So right RHS congruency mean right angles, hypotenuse and one sides. Right angle, hypotenuse and one side. These are 4 types of congruency. Side congruency, side angle congruency, angle side angle congruency. Yeah. Or angle side angle congruency call that angle congruency. Is also called that angle congruency. And 4 types is congruency. Right angle side congruency. These are 4 type congruency you can apply in triangles. Sir, I know how to apply in triangles in congruency. Is very simple. You can see this triangles 2 sides equals, between one angles equals. You can easily apply side angle side congruency. These angles 2 angles and between one side are equal, so you can apply angle side angle congruency. So it's very simple. So how to apply congruency in triangles? It's very simple. तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारी बुक्स. ओके, तो मैं वीडियो ऑफ करता हूँ और प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ. तो माई स्क्रीन आर विजिबल, नॉट विजिबल, देन आर No sir. नहीं बस अब विजिबल हो जाएगी. Yes.
Yes. बस बस हो गया ना किसी का। चलो Visible, sir. हाँ, तो दिस इज द ट्रायंगल। सर कितनी अच्छी स्पेलिंग है, TRINGLE। ट्रायंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? ट्रायंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोण। और गुजराती में? त्रिभुज। गुजराती में त्रिभुज। और मराठी में? त्रिकोण। ये गुजराती है, ये गुजराती है और ये हिंदी है। देखो हमें कितनी लैंग्वेज आती है यार, वी आर जीनियस बॉयज एंड योर टीचर इज आल्सो जीनियस। क्योंकि सभी लैंग्वेज आती है ना, त्रिकोण त्रिभुज। चलो मुझे नहीं आती गुजराती, यहाँ कभी बोलना ना, ठीक है। तो चलो ट्रायंगल्स, तो दिस इज ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स डेफिनेशन, दिस फिगर्स आर बाउंडेड थ्री साइड इज कॉल्ड ट्रायंगल्स, इज वेरी सिंपल डेफिनेशन। तो चलो हम बुक से बात करते हैं। तो हमारे सिलेबस में पहला ही टॉपिक क्या है, पहला ही एक्सियोम है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ एनी टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एनी two sides and included angle of the other triangle. This is first axiom in your syllabus. What to see axioms? Axioms say that two triangle are congruent if any two side, this side and this side, and this side and this side, any two sides are equal, and between one angle, this angle A1 and this angle A1 are equal, तो these call side angle side congruency। सर ये क्या है, ये आपका पहला एक्सियोम्स है। आप यहाँ पर देखोगे साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, और साइड 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 और RHS, ये चार आपके एक्सियोम्स है। आप इसको मोटिवेट भी बोल सकते हो, जो इनकी थ्योरम से रिलेटेड है, जो आप सीखने वाले हो। जो भी मैंने बोला ना, चार के चार आपके कॉन्ग्रुएंसीज के रूल है, वो यहाँ लिखे हुए हैं। तो आज हम ये चारों ही पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद कल हम पढ़ेंगे इनके प्रूव एंड मोटिवेट। तो चलो पहला आपका ये लिखा हुआ है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये चारों के चारों आज कैसे होते हैं कॉन्ग्रुएंसी इनके अंदर, फिर इनको कैसे प्रूव करेंगे वो हम बुक से पढ़ेंगे। वो हम पढ़ेंगे, आपकी बुक किधर गई, इधर है आपकी बुक, वो आपकी बुक से पढ़ेंगे। जैसे पहला नंबर 1 है ये एक्सियोम 7.1 साइड एंगल साइड, इसको कैसे हम प्रूव करेंगे ये आपकी बुक से देखेंगे। दूसरा एक्सियोम्स आपका स्टार्ट होता है, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी हम सॉल्व करेंगे, ये आपकी बुक्स में ही है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स, ये हम सॉल्व करेंगे। और देन नेक्स्ट एक्सियोम्स देखेंगे या मोटिवेट देखेंगे, एक्सियोम्स नंबर 2 एंगल साइड, ये आपका दूसरा वाला आ जाता है नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये सभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्लाइड में देखते हैं ट्रायंगल्स के बारे में कुछ चीज़ें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। सर व्हाट आर ट्रायंगल, ट्रायंगल्स क्या होते हैं? ट्रायंगल्स आर द ट्री मतलब थ्री कौन से थ्री, मतलब बाउंडेड थ्री साइडेड, बाउंडेड थ्री साइडेड और कॉल्ड ट्रायंगल। इट वेरी सिंपल, आप सभी को पता है ट्रायंगल्स क्या होते हैं। ट्रायंगल्स के अंदर क्या क्या होता है, चलो चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि सर ट्रायंगल्स के अंदर ये होते हैं। मैं आप जो लिखेगा ना उसका नाम के साथ मैं लिखूंगा, उसने ये बताया कि ट्रायंगल्स के अंदर क्या क्या होता है। चलो मैं आपके पास आ रहा हूँ, इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ। ट्रायंगल्स के अंदर क्या क्या होता है आप लिख के बताओ मुझे। जो भी लिखेगा ना मैं उसका नाम लिखूंगा यहाँ पर। नहीं चैट बॉक्स में लिखो, मैसेज में लिखो, ऐसा नहीं। हाँ ओके सर, यहाँ मत लिखो। साइड होते हैं, एंगल होते हैं, गुड। चलो ये तो लिख लेते हैं, साइड भी लिख लेते हैं और एंगल भी लिख लेते हैं, एंड अदर साइड्स एंगल वर्टेक्स भी। एंगल्स यहाँ लिखते हैं, चलो साइड्स यहाँ होते हैं, एंगल्स यहाँ होते हैं। सर वर्टेक्स भी होते हैं, ठीक है चलो वर्टेक्स भी लिखते हैं। जो आप लिखोगे ना मैं वही लिखूंगा, साइड एंगल वर्टेक्स। अरे इससे आगे भी बढ़ो, साइड एंगल वर्टेक्स से लिखे जा रहे हो। एजेज नहीं होती बेटा, एजेज होती हैं 3D शेप्स के अंदर, ट्रायंगल्स में एजेज नहीं होती, एजेज नहीं होती। ग्रीवा चौहान, मिडेन का नाम सुना है? मिडेन, अरे मिडेन का नाम सुना है क्या? डायमेंशन नहीं, मिडेन का नाम सुना है? हाँ, ये ट्रायंगल में होती है कि नहीं होती है? यस या नो? मिडेन ट्रायंगल में होती है कि नहीं होती है? होती है। अल्टीट्यूड का नाम सुना है? अल्टीट्यूड, अरे अब तो लिखोगे, अल्टीट्यूड भी होता है ट्रायंगल्स में, मिडेन अल्टीट्यूड। सेंटर होता है क्या ट्रायंगल में? माय क्वेश्चन इज सेंटर इन द ट्रायंगल, सेंटर होता है क्या ट्रायंगल में? सेंटर, बेस, अरे बेस लिखने की जरूरत नहीं है, साइड्स लिख दिया, बेस लिख दिया, हो गया। मिडेन अल्टीट्यूड, सेंटर होता है, सेंटर, हाइट, अल्टीट्यूड एंड हाइट सेम ही होता है बेटा, अल्टीट्यूड एंड हाइट सेम ही होता है।
सेंटर होता है ट्रायंगल में? नो, सेंटर होता है। सेंट्रोइड होता है क्या? सेंट्रोइड, सेंट्रोइड होता है क्या ट्रायंगल में? सेंट्रोइड, सेंट्रोइड होता है? सेंट्रोइड क्या होता है? चलो बताओ। सेंट्रोइड, देखो एक बच्चे ने लिखा है, क्या नाम है इसका? मैं नाम बोल देता हूँ एक बार। कौन है, कहाँ गया? मीत परमार ने बोला सेंट्रोइड होता है, ठीक है, सेंट्रोइड होता है सर। अब मीत परमार से मैं पूछता हूँ बेटा सेंट्रोइड होता कहाँ है, क्या होता है सेंट्रोइड? चलो बताओ। ऑर्थोडॉक्स का नाम सुना है? ऑर्थो सेंटर, सॉरी ऑर्थोडॉक्स नहीं, ऑर्थो सेंटर का नाम सुना है? ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर का नाम सुना है? ऑर्थो सेंटर। चलो अब ऑर्थो सेंटर का नाम ही नहीं सुना आपने? अरे आपने ट्रायंगल पढ़ा था ना, आपको ये सब पता होना चाहिए। नो सर। चलो ऑर्थो सेंटर का नाम नहीं, यस, मतलब आपको साइड्स पता है, एंगल्स पता है, आपको वर्टेक्स पता है, मिडिन, अल्टीट्यूड, सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर नहीं पता। सर सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल्स पॉइंट वेयर 3 मिडिन कोइंसाइड, वेरी गुड। द पॉइंट, गुड, कौन है ये, इसका नाम देखना पड़ेगा। हु इज द राइट टू डेफिनेशन? हिमेन गोसाई, वेरी गुड बेटा। एंड हिमेन गोसाई, you know where to ortho center in a triangle? Centroid is the intersection point, very good Meet Parwar. Centroid is a intersection point in 3 median intersect. चलो गुड, मैं बताता हूँ आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपके मैं सोल्व करा देता हूँ। यू नो साइड्स क्या होती हैं, वर्टेक्स क्या होता है, आपको पता है, आपको अल्टीट्यूड भी पता होगा और ऑर्थो सेंटर भी पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। एंड सेंट्रोइड आपको पता ही है, इंटरसेक्शन 3 मिडियंस इज पॉइंट कॉल्ड सेंट्रोइड। सेंटर नहीं होता इसके अंदर, ट्रायंगल्स के में सेंटर नहीं होता। व्हाई? बिकॉज सेंटर मीन्स बिल्कुल बीच में। अब बीच में तो ये कहीं हो ही नहीं सकता ना, सेंटर कहाँ होता है? चलो सेंटर किस में होता है, कौन से फिगर में सेंटर होता है, कौन से फिगर में सेंटर होता है? माय क्वेश्चन, चलो सोच के बताओ कौन से फिगर में सेंटर होता है। इतना मैं इसको इरेज करता हूँ। अरे बहुत ईजी है ना, सर्कल में होता है सेंटर। इक्विलेटरल। अरे सर्कल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंटर होता है। अरे ट्रायंगल में सभी ट्रायंगल सेंटर आते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंटर नहीं होता है, सेंटर होता ही नहीं है ट्रायंगल्स में। सेंटर कहाँ होता है? सर्कल के अंदर। क्योंकि सेंटर मीन्स क्या होता है पता है क्या? सेंटर का मतलब होता है बिल्कुल मिड पॉइंट, और ये पॉसिबल हो सकता है सिर्फ सर्कल में ही, क्योंकि सर्कल में ही होता है सेंटर, बस बाकी सेंटर कहीं नहीं होता है। तो दिस मिडियन क्या होती है? मिडियन क्या करती है? फ्रंट लाइन को इक्वल टू पार्ट में डिवाइडेड कर देती है, ये होती है मिडियन। फ्रंट लाइन को इक्वल टू पार्ट में क्या कर देती है? डिवाइडेड कर देती है। लग नहीं रहा ये मिडियन है, इन दोनों को मिटा देते हैं। फ्रंट लाइन को इक्वल पार्ट में क्या करती है? डिवाइडेड करती है, वो होती है मिडियन। तो ये है मिडियन आपकी, जो फ्रंट लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइडेड कर देते हैं। ये हिस्सा बराबर है और ये भी बराबर है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रोइड। ओके सर, अल्टीट्यूड क्या होते हैं? अल्टीट्यूड क्या करते हैं? फ्रंट लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं इस तरह से। ये क्या करते हैं? फ्रंट लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं इस तरह से, अल्टीट्यूड। और जहां पर ये मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। समझ गए? तो अल्टीट्यूड लिख लेना कहीं भी आप लिखना चाहो तो। अल्टीट्यूड इंटरसेक्ट पॉइंट, altitude intersect point called orthocenter, and median intersect point called सेंट्रोइड। याद रखना, मिडियन का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है उसको बोलेंगे सेंट्रोइड, और अल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है उसको बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। सबको ये बात समझ आई कि नहीं आई? यस नो में जवाब दो तुरंत। सर अच्छे से समझ आ गई। जहाँ पर मिडियन मिलती है उसको बोलेंगे सेंट्रोइड। जहाँ पर आज के बाद कभी भी ट्रायंगल से जुड़ी हुई चीज नहीं भूलोगे ना, बिल्कुल नहीं भूलना, बिल्कुल नहीं भूलना कि ट्रायंगल में सेंटर नहीं होता है सर। ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर होते हैं, सेंट्रोइड होते हैं, अल्टीट्यूड्स होते हैं, मिडियंस होते हैं, एंगल्स होते हैं, साइड्स होते हैं, वर्टेक्स भी होते हैं, ये सब होते हैं ट्रायंगल्स में। बट ट्रायंगल्स में सेंटर नहीं होता है, याद रखना। तो ये चीज़ है ट्रायंगल से, आपकी बुक्स में नहीं, मैं बता देता हूँ। चलो
ऑब्जेक्ट क्या है इस लेसन का, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन डिफाइन करेंगे कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स की, फिर उसके बाद हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जैसे किस तरह से ये अप्लाई होता है दो ट्रायंगल्स में, और उसकी कुछ प्रॉपर्टी लिखेंगे ट्रायंगल्स की, और फिर बाद में इनइक्वलिटी डिसाइड करेंगे। इनइक्वलिटी भी एक टॉपिक्स है, लेकिन आपके बुक्स आपके सिलेबस में ये दिया नहीं है, सिर्फ आपको ये 6 थ्योरम्स आपको चार मोटिवेट है और दो प्रूव एक प्रूव और 2 मोटिवेट और आपकी ये पढ़ने हैं, आपके बुक्स में इतना नहीं है। तो सबसे पहले व्हाट टू कॉन्ग्रेंसी, कॉन्ग्रेंसी मीन्स लेट्स ट्रायंगल ABC and XYZ are equals, equals what to equals, equals are angles, equals are angle, equals are side, equals are side and equals are side is called congruency. Congruency means equal, similarity means similar, कॉन्ग्रेंसी का मतलब होता है पूरा इक्वल दिखना, तो ये होता है कॉन्ग्रेंसी। ये 4 टाइप्स की होती है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वी विल लर्न इन दिस सेशन 4 टाइप ऑफ कॉन्ग्रेंसी। तो देखो कॉरस्पॉन्ड ऑफ, ये तो छोड़ो, ये आपके लिए इतना रेलिवेंट नहीं है। एक चीज़ याद रखना, कहीं भी आपको ये लिखा मिलेगा CPCT, एक वर्ड मिलेगा, इसका मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब आपको पता है ना, मैं बताता हूँ कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है। दिस ट्रायंगल्स ABC एंड दिस ट्रायंगल PQR, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है, तो इन दोनों को बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है, यानी साइड्स बराबर है, इसको बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग। एंड दिस साइड्स आर इक्वल, इसको बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग। तो CPCT दैट मीन्स कोरस्पॉन्डिंग पार्ट आर कॉन्ग्रेंस इन ए ट्रायंगल। ये थोड़ा सा लंबा वर्ड है, आप याद रख लेना। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट इन ट्रायंगल, सिंपल ट्रायंगल बोल देना, आप लिख देना। CPCT मीन्स होता है, याद कर लो, MCQ में पूछ सकता है। कोरस्पॉन्डिंग, चलो सभी मन में बोलो, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट आर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल CPCT। मैं कहीं भी लिखूँ ना CPCT, इसका मतलब आप समझ जाना कि जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं ट्रायंगल में। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, दिस इज द CPCT। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेस। इसका मतलब क्या होगा, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, ये आप लिख लेना, मैं ये स्लाइड आपको शेयर कर दूंगा। इस अभी जैसे क्लास खत्म होगी मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन मेरा मतलब आपको समझाना है, ये शेयर करना से कोई मतलब नहीं है। अब मैं चाहता हूँ आप लोग समझ जाएं। पहला SAS, ये है SAS मीन्स क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल, दिस साइड्स एंड दिस साइड्स एंड दिस साइड्स एंड बिटवीन एंगल्स आर इक्वल्स। ये आपको समझ आ गया ना, SAS का मतलब क्या होता है, 2 साइड्स AC इक्वल्स PR and BC equals QR and between angle C angle R, these apply SAS rule and triangle ABC and PQR are congruence। सर कॉन्ग्रेंस का सिंबल क्या होता है, ऐसा होता है, और सिमिलर का सिर्फ ऐसा होता है। सर अंतर क्या है, देखो ये सिमिलर का सिंबल होता है और ये कॉन्ग्रेंस, कॉन्ग्रेंस में क्या होता है, इक्वल्स होता है, इसलिए यहाँ पर इक्वल के ऊपर सिमिलर सिंबल होता है, जैसे इक्वल खींचेंगे और ऐसे करेंगे तो ये होता है कॉन्ग्रेंस का सिंबल, और सिमिलर का सिर्फ ऐसा रहता है, ये थोड़ा सा आप देख लेना। SAS रूल आपको समझ आ गया। नेक्स्ट रूल चलते हैं, ASA कॉन्ग्रेंसी। एक मिनट रुको, नेक्स्ट चलते हैं ASA कॉन्ग्रेंसी। ये ASA कॉन्ग्रेंसी क्या होता है, सर 2 angles and 2 angles, which are 2 angles, this 2 angle, triangle A, 2 angles and between sides are equals, these are 2 angles, angle A equal angle D, angle C equal angle F and between sides, ये sides भी आपको क्या होनी चाहिए, equals होनी चाहिए, ACD है, तो इसको बोलेंगे एंगल साइड एंगल्स रूल। सर इसी में एक रूल हो रहा है, एंगल साइड्स रूल्स। What to say angles rules? Angles rules is that 2 angles and one sides are equals and one sides are equal. So then 2 angles and one side then are equals. That is 2 angles ABC and PQR. Sir, this rules is say that 2 angles and one angle and 2 angles are equal and sides are equal. But angle sides rules is are equal to angle side angle rules. Yes. How to equals? Then
देखते हैं कैसे इक्वल्स है। ए बी सी पी क्यू आर, एंगल Q इक्वल एंगल B एंड एंगल P एंड इक्वल एंगल A, 2 and 2, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल A इक्वल टू एंगल P एंड दिस साइड्स आर इक्वल AC एंड PR। तो सर ये तो बिटवीन साइड इक्वल ही नहीं है, बीच की साइड देखो आप ध्यान से देखो, ये एंगल मान लो 40 का है तो दिस ये बीच कितने का होगा, 40 का होगा, ये मान लो 60 का है तो ये भी 60 का होगा। तो बताओ ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, यस या नो? एंगल C एंड एंगल R इक्वल होगा? Yes, sir. Yes, sir. यस, व्हाई? बिकॉज सर आई नो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 एंड इफ वी सब्सट्रैक्ट 180 minus 40 plus 60 then 180 minus 100 and subtract is 80 and this angle is also 80 and ये एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो अप्लाई हो जाएगा ना फिर एंगल साइड एंगल रूल, एंगल साइड एंगल रूल। इसीलिए इसको एंगल एंगल साइड रूल भी बोलते हैं, क्योंकि थर्ड एंगल बराबर हो जाता है तो कोई भी साइड बराबर हो, चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो, ये रूल भी अप्लाई हो जाएगा। आप इसको एंगल एंगल साइड बोलिए, साइड एंगल एंगल बोलिए या एंगल साइड एंगल बोलिए, तीनों सेम ही हैं। ओके, तो समझ आया ना कैसे इसको एंगल एंगल साइड रूल बोलते हैं, वो यहाँ पर समझाया हुआ है। देखो यहाँ पर समझाया हुआ है, दिस एंगल आज इक्वल 30, मान लेते हैं ये 30 का है, ये मान लेते हैं 70 का है, ये 70 का है और ये साइड बराबर है 4 4। अब हमको चाहिए इनकी साइड बीच में बराबर, 70 प्लस 30 देन ये कितने का हो जाएगा, 80 का, 70 प्लस 30 देन ये हो जाएगा 80 का। अप्लाई हो गया ना, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, रूल वही अप्लाई हो गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, देख लेना। नेक्स्ट रूल इज द साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। What to say side 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 congruency? All sides are congruent, all congruent sides are equal. Which congruent sides are equals? AC equal to PR, देखो 1 1, then AC equal to PR, then BC equal to QR, then BC equal to QR, then AB equal to PQ, then AB equal to PQ. So all three sides are equals, then use the apply side 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 congruency, use the congruency side 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 congruency. Third rules is the right angle side congruency. Right angles, H means hypotenuse and sides. ये कोई वो नहीं है कि सर इफ़ यू फॉलो दिस पैटर्न्स, नहीं, साइड हाइपोटेनस भी कर सकते हो, राइट हाइपोटेनस साइड भी कर सकते हो, कोई सी भी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसका पैटर्न नहीं फॉलो करना है, बट आपको ये चीज़ें बराबर करनी है। विच आर थिंग्स, राइट एंगल, नेक्स्ट हाइपोटेनस एंड देन वन साइड्स, विच साइड, एनी टू वन साइड्स। तो देखो राइट एंगल्स इज आल्सो इक्वल्स 90 एंड 90, हाइपोटेनस, front sides of right angle is called hypotenuse, front sides of right angle is called hypotenuse, then hypotenuse are equal and other sides, ये वाली बराबर हो चाहे ये वाली बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अप्लाई दिस राइट एंगल हाइपोटेनस साइड्स रूल्स। तो ये हैं आपके 3 रूल्स, ठीक है, जो हमने यहाँ पर पढ़े। चलो ये है 4 रूल्स, 4 रूल्स जो हमने पढ़े, रिपीट करते हैं। साइड एंगल साइड रूल्स, एंगल एंगल साइड या एंगल साइड एंगल या साइड एंगल एंगल रूल्स, देन साइड 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 रूल्स, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड्स रूल्स। दीज आर 4 रूल्स यू कैन अप्लाई, फाइंड आउट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इन ए ट्रायंगल। ये आपकी बुक है, चलो बुक आप सभी के पास है ना, यस या नो? अरे सभी के पास बुक्स है ना? Yes, sir. Yes, sir. ऑलरेडी वी डिस्कस, रिपीट, व्हाट इज ए ट्रायंगल। ट्रायंगल्स में क्या होते हैं, मिडेन होते हैं, अल्टीट्यूड होते हैं, सेंटर्ड होते हैं, ऑर्थो सेंटर होते हैं, एंगल्स होते हैं, साइड्स होते हैं। तो दिस इज द ट्रायंगल्स। नेक्स्ट, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स मीन्स इक्वल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स मीन इक्वल। नेक्स्ट, these are congruent, why? Because these are equal and both are equal, 4 4 5 5, these are equals। and next, ये फिगर इक्वल कॉन्ग्रुएंस है, इक्वल है, बताओ। ये फिगर कॉन्ग्रुएंस है या सिमिलर है, बताओ।
आपको 4 फिगर दिख रहे हैं, ये कॉन्ग्रेंस है सिमिलर है, बताओ जल्दी से। Similar. सिमिलर है, अरे देखो ये छोटी है ये बड़ी है, ये उससे छोटी है ये उससे छोटी है, दीज आर सिमिलर नॉट कॉन्ग्रेंट, याद रखना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये कुछ ट्रेंगल्स हैं, अब बताओ ये ट्रेंगल 1 और ट्रेंगल 2 सिमिलर है कि कॉन्ग्रेंस है, बताओ 1 और 2, जल्दी से सोच के बताओ। Congruent. हाँ कॉन्ग्रेंस, देखो यहीं से देख लो, यही देख लो, ये 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, इसका एक एंगल 3 तो ये भी 3, इसका एक एंगल 1 तो ये भी 1, यानी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं एंगल साइड एंगल, तो दीज आर कॉन्ग्रेंस। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कॉन्ग्रेंस क्या है, ये आपको चेक करना है, आपके लिए एक असाइनमेंट है। असाइनमेंट जानते हो ना कैसे बनाते हैं, किस असाइनमेंट पेजेस में बनाते हैं आप ना, ये पांचों फिगर लिखना 1 2 3 4 5 और चेक करना कि इनमें से कौन कौन सा कॉन्ग्रेंस है, ठीक है, आपके असाइनमेंट पेजेस के ऊपर लिखना है ये। चलो ये आपके कुछ क्राइटेरिया पढ़ लिया, ये हमने क्राइटेरिया हैं ये हमने पढ़ लिया है, इस पर मैं डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं सीधा पहला एग्जाम नंबर 1, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल्स। ये आपको नोटबुक में लिखना है ऐसे के ऐसे, कौन सी नोटबुक में, होमवर्क नोटबुक में, एग्जेक्टिव आपको लिखना है क्योंकि आपके सिलेबस में ये आएगा 100%, ये आपको आपकी होमवर्क नोटबुक में लिखना है ऐसे कैसे। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी, 2 ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट इफ 2 साइड्स एंड included angle of a one triangle equal to 2 sides and included angle of other triangles। चलो इसको प्रूव करके देखते हैं कि कैसे बराबर है। ये आपके दिया, अब इससे ये आपको ऐसे कैसे लिखना है, यहाँ तक ये आपका एग्जाम नंबर 1 हो गया। मैं फिर बोल रहा हूँ इसको ऐसे कैसे आपको आपकी बुक में लिखना है, ये है आपका साइड एंगल। चलो इसका एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 2 ट्रायंगल्स, ट्रायंगल OA बराबर OB, OA बराबर OB एंड OD बराबर OC, OD बराबर OC। तो ये प्रूव करना है AOD कॉन्ग्रेंस है BOC एंड AOD पैरेलल है BC के। ये पैरेलल का सिंबल होता है इस तरह से पैरेलल का, और इस तरह से अल्टीट्यूड का सिंबल्स होते हैं, ये थोड़ा देख लेना। तो प्रूव करो, चलो चेक करते हैं। अब कैसे पता करेंगे, रूल लगाना है साइड एंगल साइड। अब बताओ ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, हाँ ना में जवाब दो बस मुझे। एंगल्स ये वाले एंगल्स इक्वल हो, यस वाई, रीजन बताओ, रीजन बताओ। vertically opposite हाँ वर्टिकली अपोजिट्स एंगल, एंड आई नो सर वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, देन सर एंगल AOD are equal angle BOC and already you are given OA बराबर OB, OC बराबर OD, OD बराबर OC and between angle which angle, angle AOD बराबर angle BOC, then CPCT, what to say sir CPCT, congruence CPCT what to say, बताइए चलो CPCT क्या होता है जल्दी बताओ। corresponding part of congruent triangle हाँ corresponding, आगे फिर से बोलो। हाँ बार बार मन में रिपीट कर लो, सीख जाओगे, पूरा का पूरा लिखना है corresponding। चलो फिर से बोलो, corresponding part of congruent triangle। अरे एक साथ मत बोलो, एक एक बोलो, इतना जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलोगे तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा। corresponding आराम से बोलो, एक बोलो कोई भी। corresponding parts of congruent triangle। हाँ पिछले साल एक CBSE में क्वेश्चन पूछा था, देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ CPCT मीन्स, उन्होंने क्या किया यहाँ डाला और लिख दिया corresponding डैश congruence ऑफ ट्रायंगल। इसमें क्या आएगा, ऑप्शन ए पार्ट, ऑप्शन बी ट्रायंगल, ऑप्शन सी एंगल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ आएगा पार्ट्स, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ। तो इसका, अरे यार बैठ लो, इसका मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। तो ये हो गया CPCT, तो बहुत अच्छे से याद कर लेना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल्स। और देन यू कैन अप्लाई एंगल साइड एंगल साइन रूल एंड ट्रायंगल
and angle side and side angles and triangle AOD congruence triangle BOC। कर सकते हो ना इसको अच्छे से? हाँ ना में जवाब दो। Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें दूसरा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज दैट AD इज पैरेलल ऑफ BC। सर AD इज पैरेलल ऑफ BC? यस। हाउ टू सोल्व दैट AD इज पैरेलल ऑफ BC? देन देखो, आपने एक बात पता कर ली, ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रेंस है। ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल BOC। दीज आर ट्रायंगल्स दीज आर कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल्स। तो अब इनके एंगल्स भी सभी के सभी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो देखो कौन से एंगल्स बराबर होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। अब मुझे इन दोनों को पैरेलल करना है, इन दोनों को पैरेलल करना है, तो मुझे ये एंगल बराबर करने पड़ेंगे, एंगल A और एंगल B। सर इन दोनों के बराबर होने से अगर ये 30 का है तो ये भी 30 का है, मतलब इसका झुकाव 30 है और इसका भी जो टिल है वो 30 है। तो मतलब ये क्या होंगे दोनों के दोनों? जैसे ये 30 है और नीचे लाइन बनाई वो भी 30 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? फिर पैरेलल हो जाएगी ना, वो सीधी जाएंगी ना। तो बस मुझे एंगल A और एंगल B को इक्वल करना है। अब आपको एक बात पता है, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है, AOD कॉन्ग्रेंस है BOC, तो उसके एंगल्स भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो एंगल OAD इक्वल है एंगल OBC, या आप लिख सकते हो एंगल A बराबर एंगल B, यानी जो उनका टिल है वो बराबर है। तो मतलब दोनों ऐसे ही रहेंगे, जैसे ये टिल है ये बराबर, ये भी 30 का है और ये भी 30 का है, तो ये दोनों फिर क्या चलेंगी? पैरेलल चलेंगी। तो AD पैरेलल BC, इसको आपको नोटबुक में भी नोट डाउन करना है, ठीक है। तो आज यहीं तक पढ़े। आप सब लोग इसके एग्जाम्पल्स कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, और फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ कर लेना और ये रूल्स लिख लेना। कल हम पढ़ेंगे एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ के आना। देखो अभी कोई ज्वाइन कर रहा है, आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ के आना ताकि हम इजीली इसको सोल्व करा सके। तो थोड़ा सा आप लोग भी इसको क्या करके आना? पढ़ के आना। कल की क्लास में हम इसको फिर से और डिस्कस करेंगे, ओके। और जिन लोगों का होमवर्क बाकी है ना, वो होमवर्क भी अपना कंप्लीट कर लेना। तो आज हमने पढ़ा 1 एग्जाम नंबर 1 एंगल साइड एंगल। तो इसका जो भी एग्जाम्पल्स 2 हैं वो लिखना है, एग्जाम्स आपको लिखना है, और जो थर्ड है एंगल साइड एंगल वो भी आपको पढ़ के आना है, ठीक है। ठीक, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय, ओके। किसी को कोई डाउट्स है पूछना है? ठीक है, चलो बाय। सर एग्जाम्पल हाँ एग्जाम्पल्स लिखना है, होमवर्क नोटबुक में एग्जाम्पल्स लिखना है, ओके, ठीक है, चलो ओके।